आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी हैं और आज 7वें रोज भी दफा 370 पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सीनियर वकील और राज्यसभा रुकन कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज किया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने दलाइल आगाज करते हुए कहा कि दफा 370 ने साबिक रियासत को दाखिली खुद मुख्तारी दी, जिससे इनकार करने का मतलब ये है कि मनसूखी से पहले सदराज का निफाज अपने मकसद में नाकाम हो गया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि दफा 356(1)(c) के तनाजुर में मनसूखी की दुरुस्तगी के सवाल से कैसे निपटा जा सकता, जो सदर जमहूरिया खीन को आईनी दफात को मुअत्तल करने का इख्तियार देता है जब किसी रियासत में आईनी मशीनरी टूट जाती है। धवन ने जवाब दिया कि मज़कूरा शर्त को दफा 3 नई रियासतों की तश्कील के लिए पार्लिमानी तरीक़ाकार के तहत लाजमी दफात के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि यह सदर को वसी इख्तियारात देता है। सदराज के दौरान दफा 3 और 4 को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें शर्तें मुंसलिक है। Article 372 prescribes that if concurrence of government of state required by relevant clauses has been given before Constituent Assembly of Kashmir has been convened, such concurrence shall be placed before such assembly. For such decision it may take. This clause shows this, Lord, what your lordships are rightly, Lord, worried about. This clause shows that constitutional makers attach great importance to the final decision of the Constituent Assembly and continuance of exercise of powers conferred on the Parliament and President by very relevant temporary provisions of 371 is made conditional on the final approval by said Constituent Assembly in said matters. So, Lord, 371 continues with that. Once, Lord, it continues, then 373 becomes OTOs. Clause 3 authorizes President to declare public notifications that this article shall cease to be operative or shall be operative only with specified exceptions or modifications. But this power can be exercised by President only if Constituent Assembly of State makes recommendations in that behalf. Thus, proviso to clause 3 also emphasizes importance which was attached to final decision of Constituent Assembly in regard to relevant matters covered by 370. Now, my lord, please turn to next para on the same page on the said construction, para 38, para 38. But my lord, please omit first 10 lines or 5 lines, 5 lines. The constitution makers were obviously anxious. My lords have that? Para 38, yes. 4th or 5th line. The constitutional makers were obviously anxious that the said relationship should be finally determined by the Constituent Assembly of the state itself.
not by Indian Parliament. State itself, and that is the main basis for and purport of the temporary provisions made by the present article. And so the effect of its provisions must be confined to the subject matter. It would not be permissible or legitimate to hold that by implication this article sought to impose limitations on plenary legislative powers of Maharaja. These powers had been recognized, specifically provided by the Constitution Act of the state. It was not and could not have been within contemplation of competence of constitutional makers to impinge even indirectly on the said powers. So not from Maharaja, they got transferred to Constituent Assembly, those powers. So they say that you can't impinge on those powers. इधर अदालत उज़्मा में 7वें रोज में समाअत शुरू होने से कबल सीनियर वकील मुजफ्फर इकबाल खान ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात की है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 370 एब्रोगेट करने के बाद 370 बल्कि एक दिन पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू का माहौल कर दिया, फौज की इतनी चढ़ाई कर दी, तमाम जितने लीडर्स थे सबको गिरफ्तार कर लिया। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, सेपरेटिस्ट नहीं, मेन स्ट्रीम, सेपरेटिस्ट तो पहले से ही जेल में थे, उनको गिरफ्तार कर दिया, कोई बोल ना सके। और पब्लिक में इस किस्म का खौफ व हरास पैदा किया। फिर ये कहते हैं कि हमने बेहतरी के लिए किया, जिनके लिए आपने किया उनकी बेहतरी तो किसी ने देखी नहीं। तो उस वक्त हमारी पार्टी के जो लीडरान थे, जिन उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने एमपीज़ को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करो, क्योंकि वो एफिडेविट आकर यहाँ नहीं दे सकते थे। तो उस वजह से हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक पिटीशन की। एक पिटीशन मैंने भी की, मैंने अलग पिटीशन की थी। मुझे कुछ अरसा बंद किया, तो बाद में नमाज के लिए मुझे छोड़ा, मैं दिल्ली आ गया, मैंने कोर्ट में आ गया, तो फिर मुझे बंद नहीं किया। 5 अगस्त को मुझे भी बंद किया, मुझे 10 दिन बंद रखा। ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने पिटीशन क्यों नहीं फाइल की, पर उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो दी है उसमें कोई प्ली, अब ये तो कोर्ट तक है, लेकिन कल चीफ साहब ने कोर्ट में कहा था कि जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन हैं जितनी भी, वो अपना रिटर्न सबमिशन दे दें, हम उनको सुनेंगे नहीं। ये तो मुझे नहीं कह सकता कि टाइम ज़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कल रिमार्क्स दिया था कि जितनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो 1 पेज के आर्गूमेंट आपने जो है रिटर्न सबमिशन मुझे सबमिट करके दे दें, आई विल नॉट हियर दैट। जाहिर सी बात है, महबूबा मुफ्ती एक एक्स चीफ मिनिस्टर है और उसने अपना व्यू पॉइंट आकर रखा है कि भाई लोगों के साथ क्या हुआ। मैं इत्फाक करता हूं कि ये सिर्फ एक प्रोविज़न का मामला नहीं है। आर्टिकल 370 सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न ही नहीं है, ये लोगों के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी तो ये भी कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के दरिया बहा दिए, दूध और शहद की नहरें बहा दी, लेकिन वहाँ है कुछ नहीं है। वहाँ आज भी इतना डर और खौफ है कि कोई आदमी 370 के मामले में खुलकर बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो दूसरे दिन जेल होगा वो। बीजेपी का तो है, उनका एक अपना नैरेटिव चला रहे हैं वो। उन्होंने तो ये भी चला दिया कि जिस तरह कि जम्मू कश्मीर में पहली बार तिरंगा लहराया गया 15 अगस्त के दिन। अरे भाई 1947 से लेकर आज तक, बचपन में जब स्टूडेंट था स्कूल का, तब से हम लहराते देख रहे हैं और हर आदमी लहरा रहा है। हर आदमी के घर पर झंडा पहले भी होता था, लेकिन ये शोर शराबा नहीं था। तो बीजेपी वालों का एक अपना तरीका है, वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वोटों की राजनीति होगी किसी की भी पार्टी की। वोटों की राजनीति नहीं है, ये वहाँ के लोगों का मामला है। अब ये इसको मेरा ज़ाती मामला मत समझें। इस वक्त खाली मैं नहीं, महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं, उमर साहब नहीं, फारूक साहब नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है ना, पब्लिक है, उसकी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ क्या इंसाफ करता है। हमारे लिए कानून बनाया गया और हमसे पूछा तक भी नहीं गया और कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। कल आपने दलीलें सुनी होंगी राजीव धवन साहब की कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। इसमें शक नहीं कि राजीव धवन साहब ने बहुत ब्यूटीफुली कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है बहैसियत एक वकील के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह लेता है वो उन तक है। हमारा काम है दलीलें देना। मगर एक चीज़ मैं इमोशनली मैं आपको बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तवक्कात हैं इस इंस्टीट्यूशन से। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जम्मू के लोग भी, अरे भाई मैं जब कभी जम्मू जाता हूँ ना, तो लोग घेर लेते हैं मुझे, क्या लगता है हमारे साथ इंसाफ होगा? ये गलतफहमी, ये भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इसको, आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी
स्टेट को अच्छा करने के लिए स्टेट को ही ख़त्म कर दूंगा। ये तो हो गया कि इन ऑर्डर टू सेव यू आई वांट टू किल यू, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें ही मारना है। ये तो वो हो गया ना कि भाई वियतनाम में एक फौजी ने कहा था वी हैव टू डिस्ट्रॉय अ विलेज टू सेव द विलेज। तो आपने स्टेट को डिस्ट्रॉय किया स्टेट को बचाने के लिए, ये दलील हो गई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने खुतई चुनाव के चिराला इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि हिंदू मजहब सबसे पुराना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम 1500 साल पुराना है और वादी कश्मीर में भी सभी गैर मुस्लिम थे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नाकाम दमहाल हाजीपुरा में तलबा व तालिबात अपनी तालीम टीन शेड में हासिल कर रहे हैं। बरसात के मौसम में ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला कुलगाम के नागाम गांव में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम 120 के करीब बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। मुतलका हुकाम खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि स्कूली बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक नई इमारत कायम की जाए। मुजफ्फर पढ़ान JMS गर्ल्स मिडिल स्कूलस मज ये रूद पेवान घर गसन पे वर्दी तरित बे एक क्लास मज 4 क्लास एक साइड सर दिवान क्लास बी साइड शोर गसन डिस्टर्ब गसन कर LG साहबस अपील बे DC साहबस दिन बिल्डिंग दिक्कत गसन। मे नाम मोहम्मद जावेद लोन बह स्कूलस पढ़ान दिक्कत गसन अक्स क्लास में 3 क्लास ये पढ़ान मास्टर तम साथ दिक्कत गसन बे यम रूद तम दह शडस मज बेहान पे वर्दी भरित रूद पे ताप घर कर LG साहबस DC साहबस अपील कि दिन बिल्डिंग नागाम गुजारिश सो बच्चे मुश्किल मज सामन कर ये टीन शेड बारिश पुठ तूफान इन बिचार आसान आब टाट भरित दिन खतर स्कूल अकामडेशन ताकि स्कूल तह मान स्कूल मज नान DC बनित कमिश्नर बनित हद कह अफसर ये बदतर अत कुन ज्यादा ध्यान दिन बच्चे गई सी तकलीफ तुल इन कत छलो काल पगह वर्दी पे गुरबत सोचन आसन काल वन पलो सुबह तम रब सत भरित पे बी छाल वर्दी सन गुजारिश गवर्नमेंटस ये कुन दिन ताउन। अहमद लोन बहुत बाशिन स्कूल यह 9th तान स्कूल मगर कमर ये 9 क्लासन 2 कमर इन मज कतिस कालस क्या बच्चे कर 110 तान रोल बचन हूँ कम खोत कम गोस गवर्नमेंट यीन कर अपग्रेडिंग गई थोड़ा बहुत गोड़ 5वीं तान पे गो 7वीं तान पे गो 8th तान वन 9वीं तान अगर ये जगह इन बचन तकलीफ इन बचन वातान बारिश मन नबर कन ये ग्राउंडस मन गड़ा यह ये छतरी पे थान गड़ा क्या थान यम जबरदस्त तकलीफ 2 कमरन मज हेना वेपित 9 क्लास तो अम खतर उस्तादन पे मुश्किलात पेवन तिमन मुश्किल पेवन बिचारन वेदरावन करन क्या ये बस्ती नज़दीक ये जन इन बस्ती मज छुपाहन पे तूफानी बारिश कुन सात खतर रोजान बच्चे मा मर बारिश मज कुन जाए तो है गवर्नमेंटस सोन कि ये कर थोड़ा बहुत ये गसन अकामडेशन स्कूलस अपील रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोन नाव मुमताज अली बहुत नागम रोजन वोल ये सरपंच मे गर्ल्स मिडल स्कूल नागमस मज ये 2 कमर रोल 120 बच्चस रोल
तो ये कमर जुई हज वह बनाया टीचर हजरात ये टीन शेड पन्न पोसन तो अत रूद वसान ये रब मज वर्दी लगित बिचार रूद बारिश कर तथ मज बरन मे करे यम ब्रो गुजारिश गवर्नमेंटस जडियो सबस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरस ये करो बिल्डिंग वागुजार तो ये लैंड अवेलेबल 120 बच्चे रोल यम सफर गसन फर्स्ट प्रायोरिटी गस दिन एजुकेशन अत डायरेक्टर अत इंजीनियर अत मास्टर अत सारी तो मेन तुस यम गामुक रोजन वोल गोडनेथ बाशिंद पे पेरेंट पे यम गामुक सरपंच मेन गुजारिश फर्स्ट प्रायोरिटी गस दिन यह एजुकेशन तो मेन बी गुजारिश PRIs मज रपस 3 सयाहती मकाम गुलमर्ग में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब फारूक, जिसके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कार का इजाफी चार्ज भी है, ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का अचानक दौरा किया और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनफोर्समेंट विंग ने गुलमर्ग में मुहिम चलाई और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर तामीर की गई कई इमारतों को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि एक मंजिला झोंपड़ी जो कि हेलीपैड के अतराफ में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी को डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने मुनहदिम कर दिया। झोंपड़ियों के इलाके के करीब बगैर इजाज़त के तामीर किया गया एक ढांचा भी मुहिम के दौरान मिसमार कर दिया गया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह की मुहिम को तेज किया जाएगा अगर इलाके में कोई गैर कानूनी या बगैर इजाज़त तामीर किया गया हो। देखो पिछले मुझे 12 दिन हो गए चाय संभाले हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोगों से शेयर करके कि 10 दिन में हमने काफ़ी प्रायोरिटी ली है क्लीनेस ड्राइव एक, और एज GDA मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो कि क्लीन एंड ग्रीन गुलमर्ग, इसकी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि गुलमर्ग हमारा साफ़ सुथरा रहे, क्लीन रहे और कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ये क्लियर है मेरी तरफ से। अगर आप बनाना है आपको जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, आप उनको फॉलो करिए। वी आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, जहाँ परमिशन वाजिब है, जायज़ है, वी विल गिव यू द परमिशन। ऐसा भी सुनने में आया कि दौरे से पहले ही कल शाम को आपने यहाँ पर डोजर चलाया है, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर खड़ी की थी जिस पे आपने डोजर चलाया, किस हद तक सही है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से, अगर कोई भी सिटीजन उसको वायलेट करे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अथॉरिटी उनको बताए। हमें जो पता चला था कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई थी यहाँ पे, कुछ इलीगल शेड्स बने थे, ये बने हट्स बने थे, तो उनको हमने कल डिमोलिश किया। हमने काफ़ी बार उनको वार्न किया कि आप खुद ही कर लीजिए, तो लेकिन नहीं कर पाए। इनफैक्ट एक हमें यहाँ पे एक बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन ये थी कि एक टेंटिंग साइट हमने आउटसोर्स की थी, 2 साल पहले किसी और को मिला था जिसने हाईएस्ट बिडर आया था, बट द करंट बाय वर्च्यू ऑफ सम होते ना एक स्टे ऑर्डर, जो वो पूरे स्टे ऑर्डर भी नहीं था, नहीं कर रहा, उसको हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटी कम से कम 10-12 चिट्ठियाँ उसको गई कि भाई साहब आप खाली कर लीजिए, समबडी एल्स हैज़ गॉट द राइट्स, बट वो नहीं कर रहे थे और इनफैक्ट 2 साल से वो इलीगली वो साइट ऑक्यूपाई कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे तो गवर्नमेंट का तो माइट दिखाना ज़रूरी पड़ता है कि एवरीबडी शुड नो कि देयर इज़ नो वन हूसोएवर पावरफुल इज अबव द लॉ एंड माइट ऑफ द गवर्नमेंट। राजौरी में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ है जिसमें जम्मू से आए हुए माहिर डॉक्टरों ने शमूलियत की। इस मौके पर राजौरी के डेंटल डॉक्टरों ने भी इस सेमिनार में शिरकत की, जबकि माहिरीन ने ओरल कैंसर के मुतालिक जानकारी देते हुए कहा कि जब भी मुंह के अंदर कोई भी दाग या दाना हो जो 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। मैं पेशे से कैंसर सर्जन हूँ और आज राजौरी में हमारी जो आउटरीच OPD प्रोग्राम के अंदर हमने एक कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम किया है जो जम्मू के राजौरी के यहाँ पे जो डेंटल सर्जन्स हैं उनके साथ, और मैंने उनके साथ यहाँ पे ओरल कैंसर के पेशेंट्स जो हमारी यूनिट में ऑपरेट हो रहे हैं और पेशेंट्स और हमारी प्रैक्टिस में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, उनसे किस तरह हमारे पास पेशेंट एडवांस स्टेज में आ रहे हैं और एडवांस स्टेज में आने की वजह से किस तरह से पेशेंट की कैंसर ट्रीटमेंट के जो आउटकम हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाते हैं, और इस सब में हम किस तरह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इसको अपनी एक साझी जिम्मेदारी समझ के किस तरह हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स टाइमली डायग्नोज हों, टाइमली ट्रीट हों। हमारा यूनिट जो जम्मू में है शंकुस कैंसर हॉस्पिटल, वो एक आयुष्मान एंड पैनल सेटअप है जहाँ पे ओरल कैंसर सर्जरीज और बाकी कैंसर सर्जरीज और कीमोथेरेपी आयुष्मान की स्कीम के अंदर किया जाता है।
और इसमें हमें समाज के हर हिस्से से डेंटल सर्जन्स, बाकी डॉक्टर्स, मीडिया, आप सबका सहयोग चाहिए ताकि पेशेंट हम पे टाइम पे पहुंचे और आगे इन सेवाओं का फ़ायदा उठा सके। सर क्या? हाँ जी, मैं और मेरी टीम हर महीने राजौरी आ रही है। हम अपना एक फ्री कैंसर ओपीडी कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना केवल यहाँ के डॉक्टर्स जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ एक कनेक्ट बनाएं, बल्कि लोकल पब्लिक के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बाकी मीडियम से हम कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करें, कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करें और ये सारी कोशिशें इस तरफ हो कि कैंसर से एसोसिएटेड जो समाज के अंदर जो डर है उसको हटाया जा सके, पेशेंट्स टाइम से मेडिकल एडवाइस लें और उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो ताकि उनकी ट्रीटमेंट आउटकम्स बेटर हो। मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आपका लगेगा अगर आप हमारा मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। आज गांव में कोई भी हो, कोई भी मोबाइल न्यूज़ उससे दूर नहीं है, तो उसमें और मीडिया का रोल आता है इसके अंदर। राजौरी के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जम्मू में आते हैं, फैमिलीज जो है जो ट्रीटमेंट हमारे वहाँ पे आयुष्मान के अंदर लेती हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया इस मैसेज को हर फैमिली तक पहुँचाए। जिला पुंछ की तहसील मंडी की पंचायत आजमाबाद में कायम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत गुज़िश्ता कई अरसे से खस्ता हाल है। अगरचे साल 2015 में महकमे सेहत के ज़रिए एहतमाम हेल्थ सब सेंटर्स को अपग्रेड करके न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया था, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इस इमारत के बाहर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन इसकी इमारत आज भी खस्ता हाली का शिकार है। इमारत की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई है, जिसकी वजह से कभी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इलाके के सरपंच मंजूर हुसैन और मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर कागजों में इसका नाम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर दर्ज किया गया है, ताहम गुज़िश्ता कई अरसे से तामीर शुदा इमारत आवाम के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। हमारे यहाँ पंचायत आज़माबाद में यहाँ पे एक हमारा डिस्पेंसरी जो थी इसको अपग्रेड किया गया था साल 2015 में, न्यू टाइप पीएचसी जिसे कहते हैं। तो बोर्ड वगैरह यहाँ पे जितने भी थे वो लगा दिए गए थे, लेकिन जो भी यहाँ पे महदूद मौका पर यहाँ पे कोई इमारत यहाँ पे नहीं बनाई गई। पहली की जो यहाँ पे बनी हुई इमारत है, यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी अंदर से क्रैक है। अगर यहाँ पे न्यू टाइप पीएचसी का बोर्ड लगाया है, यहाँ कागज़ों पे इसका दिया है कि न्यू टाइप पीएचसी आज़माबाद में है, तो इसको मौका पे तामीर भी किया जाना चाहिए। बाकी जगहों पे जहाँ पे न्यू टाइप पीएचसी आए हैं वहाँ पे उनकी इमारतें बन गई हैं, यहाँ पे हमें कोई भी इमारत नहीं यहाँ पे अभी मिली है। हमारी यही इंतज़ामिया से मांग है कि यहाँ पे न्यू टाइप पीएचसी सिर्फ बोर्ड लगाने से नहीं, यहाँ इमारत बनाने से होगी, तो यहाँ पे लोगों को ताकि मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बहुत अरसा पुरानी ये इमारत बनी है। यहाँ पे आपने देखा कि कितनी खस्ता हालत है इसकी। तो ये एनटीपीसी इसको बोर्ड भी लगा है, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई। ये काफ़ी डैमेज भी हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि बिलखुसूस ज़रूरी ये तवज्जो दी जाए। ये खाली आज़माबाद पंचायत पे मुश्तमिल नहीं है, ये लगभग 3 पंचायतों में मुश्तमिल है। ये 15,000 की आबादी पड़ती है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। बहुत बड़े दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इसमें लगभग 15 किलोमीटर से दूर से चल के लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अमले की भी कमी है, यहाँ डॉक्टर भी तैनात किया जाए और बिलखुसूस यहाँ पे इमारत को जितना जल्दी हो सके और इसको तामीर किया जाए। एनटीपीएचसी आज़माबाद जो है इसका उस दिन हमने, अब पहले क्यों नहीं बना ये मुझे इसमें इतना मैं नहीं बता सकती, लेकिन अब जो हमने उस दिन इसकी पूरा लैंड डिमार्केशन करवा के, ये स्टेट लैंड है और लगभग 2.5 कनाल लैंड है जो हमने इसका प्रोजेक्ट कर दिया है, तो ये जल्दी ही इसमें हो जाएगा। 3 लोग तो हैं, एक रेगुलर साइड से एमपीडब्ल्यू है, एक सैनिटेशन वर्कर है, एक एनएचएम की तरफ से सैनिटेशन वर्कर एमपीडब्ल्यू है, लेकिन ना डॉक्टर का कभी वहाँ पोस्ट हुआ था, ना अभी फार्मासिस्ट है। डायरेक्टर साहब भी आए थे, उनसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वैकेंसी पोजीशन हमने भेज दी हुई है, सीएमओ साहब ने भी प्रोजेक्ट कर दी हुई है। अब जैसे ही कोई लिस्ट निकलती है उसमें डॉक्टर्स तो पोस्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन कब मैक्सिमम डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करते हैं। ये एक अलमिया है हमारा।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां 370 को मनसूख करने वाली अर्जियों पर आज भी 7वें रोज भी समाअत जारी हैं, वहीं इससे कबल इस समाअत शुरू होने से कबल इरफान हफीज लोन ने बात की है गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से। आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इरफान लोन साहब हैं। सर, आज 7वां दिन आ गया है। जी। कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो बताइए कितनी उम्मीदें? दुनिया उम्मीद पे कायम है और हम भी होपफुल है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ होगा। और हमने इससे पहले भी कहा कि कानूनी तौर भी लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ना है। और इससे पहले जो आज 370 के पहले भी जो 5 अगस्त का फैसला, उससे पहले जो 70 साल जो हमारा जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था, हमारा अपना राष्ट्रपति हुआ करता था, तो और भी बहुत सारे एरोजेंस हुए कि वहाँ का ही नौकरी करेगा, वहाँ का ही ज़मीन खरीदेगा। तो इससे पहले भी काफ़ी 70 साल में उसमें एरोजेंस हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा तभी जाके वहाँ पर जो इंटरलोकेटर्स बने या जस्टिस सगीर साहब एक है जिनको अपॉइंट किया गया था, वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने तो रिकमेंड किया कि जम्मू कश्मीर को आप स्वायत्तता दे, ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी दे। और जब हम विल ऑफ द पीपल की बात करते हैं, लोगों की राय क्या है, जमहूरियत सिर्फ चुनाव नहीं है, इलेक्शन तक महदूद नहीं है। जमहूरियत का मतलब है जो बियॉन्ड दैट बियॉन्ड इलेक्शंस लोगों की असल में क्या विल है। जैसे जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन 2001 में पास किया, जम्मू कश्मीर असेंबली ने, जिन्होंने कहा कि हाँ जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि नाजरीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।